Good morning, students. How are you? I hope you all healthy and happy. This is your physics class for 7th standard, assignment 2. But before starting the work, take pledge. I, Ramadip Kaur, commit to be a vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors, to always wear a mask or face cover, especially when in public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently and thoroughly with soap. Together we will win this fight against COVID-19. Now let's start with physics. In first assignment, we start with chapter first, that is measurement. In the previous video, we learned up to measurement of area and measurement of volume of regular solids, but now about the volume of liquid. Liquid do not have a fixed shape. They take the shape of container they are kept in. The maximum volume of liquid that a container can hold is known as its capacity. लिक्विड है उनकी फिक्स शेप नहीं होती, वो उसी कंटेनर की शेप एक्वायर करते हैं जिनमें हम उसको प्लेस करते हैं. सो द कैपेसिटी क्या होती है? द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ लिक्विड दैट अ कंटेनर कैन होल्ड. जितना एक लिक्विड को होल्ड कर सकता है कंटेनर को, उसको हम उसकी कैपेसिटी बोलते हैं. कैपेसिटी हैज़ द सेम यूनिट एज वॉल्यूम. Volume of a liquid is usually measured in liter and milliliters. 1 liter equals to 1000 milliliter. 1 milliliter equals to 1 centimeter cube. So that's why in a milliliter we can write centimeter cube. So 1 liter equals to 1000 milliliter equals to 1000 centimeter cube. The volume of a liquid is usually measured in a measuring cans of different sizes and shapes. Measuring cans are available in capacity ranging from 50 milliliter to 5 liter. You can see here. इसकी जो कैपेसिटी होती है वो कंटेनर की टू होल्ड लिक्विड्स, उनकी कैपेसिटी है 5 मिलीलीटर से वेरी करती है. डिफरेंट शेप्स की होती है. यू कैन सी हियर 100 ml, 200 ml, 500 ml, 1 liter, 1 liter. These are different shapes, and this is about 2 liters. So there are so many other containers which ranging from 50 ml to 50 milliliter to 5 liter. Conical measuring cans used to measure the liquids such as kerosene, petrol. Cylindrical measure cans which with the long handles are commonly used to measure milk or oil. जो सिलेंड्रिकल होती हैं वो हम मेनली यूज़ करती हैं टू मेज़र मिल्क एंड ऑयल, और जो कॉनिकल होती हैं, कॉनिकल कैंस होती हैं, उसको हम मेनली यूज़ करती हैं फॉर मेजरिंग कैरोसिन एंड पेट्रोल एक्सेट्रा. सो दिस इज़ ऑल अबाउट लिक्विड ऑफ वॉल्यूम ऑफ लिक्विड. एंड नेक्स्ट इज़ मेजरिंग वॉल्यूम करेक्टली, कि वॉल्यूम को करेक्टली मेज़र कैसे करते हैं. ठीक है. सो व्हेन लिक्विड such as water, kerosene, petrol, etc. are filled into these devices, the surface of liquid is curved. जब हम उसको कंटेनर में पुट करते हैं तो उनका जो सरफेस होता है वो कर्व्ड होता है. द करेक्ट रीडिंग मस्ट बी टेकन बाय प्लेसिंग द आई एट द प्रॉपर लेवल. तो जब हम आई को उसके प्रॉपर लेवल पे फिक्स करते हैं तो हम उसकी प्रॉपर मेजरमेंट करते हैं. द मेजरिंग सिलेंडर शुड बी केप्ट ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस सच एज अ टेबल. जो मेजरिंग सिलेंडर है उसको एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखना चाहिए, या वो वेदर वो टेबल हो या फिर अनदर वन हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखना होगा. यू कैन सी हियर इफ़ देयर इज़ अ यू कैन लेट दिस इज़ अप टू 100 ml. यहाँ पे 100 ml है. हम उसके वो कैसे देख सकते हैं करेक्टली? हमें अपनी आई लेवल को भी इसी लेवल पे लेके आना होगा. सो फॉर करेक्ट रीडिंग पोजीशन ऑफ आई लाइक दिस. सो नेक्स्ट अबाउट मेजरिंग ऑफ वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड ऑफ इरेगुलर शेप. जो रिमेनिंग है, जो रेगुलर शेप्स के हैं, उनको तो हम कंटेनर डिफरेंट कंटेनर में उनका वॉल्यूम देख सकते हैं. लेकिन दिस इज़ अबाउट द सॉलिड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऑफ इरेगुलर शेप. जो सॉलिड है इरेगुलर शेप की होती है उसके वॉल्यूम को कैसे मेजर करते हैं.
यू कैन सी हियर देयर इज़ अ मेजरिंग सिलेंडर। यहाँ पे एक मेजरिंग सिलेंडर है और एक स्टोन है इर्रेगुलर शेप का। हमें वॉल्यूम देखना है कि सॉलिड है, स्टोन है, इर्रेगुलर शेप का, उसका वॉल्यूम कितना होगा। हमने क्या किया, एक मेजरिंग सिलेंडर में वाटर फिल किया एंड वी टाई दैट स्टोन। उस स्टोन को हमने थ्रेड के साथ टाई किया जिसका हमें वॉल्यूम चेक करना है। अब हम क्या करेंगे, इसको थ्रेड के साथ स्टोन को जब टाई किया तो उसको हम वाटर वाले सिलेंडर में डिप करेंगे। पहले तो हम विदाउट दिस इसकी रीडिंग नोट डाउन करेंगे जब यहाँ पे ये डिप नहीं हुआ इसके इनसाइड। सो यहाँ पे अगर सपोज क्या है, यहाँ पे कितना है हमारे पास 100 ml। सो व्हेन वी डिप दिस स्टोन इनटू द लिक्विड, जब हम इसको वाटर और लिक्विड में डिप करेंगे तो इसका लेवल इंक्रीज होगा। सपोज दैट इट विल बिकम 200 ml। ये 100 ml से स्टोन डिप करने से कितना इंक्रीज हो गया, 200 ml। सो नाउ when the difference of these two measuring cylinders we note down, जब हम सिलेंडर के इस रीडिंग्स को नोट डाउन करेंगे और इनका डिफरेंस देखेंगे तो हमें पता चलेगा द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ दैट स्टोन। स्टोन का कितना वॉल्यूम हुआ, 200 ml माइनस 1000 ml दैट इज 100 ml। तो स्टोन का वॉल्यूम कितना हुआ, 100 ml। सो दिस इज ऑल अबाउट द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऑफ इर्रेगुलर शेप। नेक्स्ट इज मास एंड वेट। मास एंड वेट आर टू डिफरेंट थिंग्स। मास इज द मेजर ऑफ क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन इन अ बॉडी। कि एक मैटर में, एक बॉडी में कितनी मैटर कंटेंट हुई है उसको हम मास बोलते हैं। मास इज द मेजर ऑफ क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेंट इन अ बॉडी। एंड वट अबाउट द वेट, वेट इज अ फोर्स विद विच अर्थ पुल्स अ बॉडी टूवर्ड्स इट्स सेंटर। वेट क्या होता है कि पुश होता है जिसके साथ जो अर्थ है हर एक बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, पुल a body towards its center. Let's suppose we must have experienced that two handful of sand feel heavier than one handful. हम क्या देखते हैं, अगर हमने 2 हैंडफुल लिए हैं, सैंड से फिल किए हैं, 1 है जो अगर हम सिर्फ एक ही हैंडफुल लेंगे तो वो हमें क्या लगेगा, लाइटर लगेगा एज कम्पेयर टू 2 हैंडफुल्स। और हम एक अनदर एग्जांपल लेते हैं कि वाटर है, वाटर का एक ग्लास में फिल किया, वाटर को हमने एक बकेट में प्लेस किया। हमें जो वाटर है ग्लास में है वो हमें लाइटर लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि उसका कंपैरिजन हम किससे कर रहे हैं, द वाटर इन अ बकेट। बकेट में पानी ज़्यादा होगा तो उसका जो मास है, मैटर कंटेंट है, वो भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो बकेट है वो हैवियर है एज़ कम्पेयर टू दी ग्लास वाटर। जो बकेट में वाटर है उसकी जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू वाटर इन अ ग्लास। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द मास ऑफ मैटर। Mass is the measure of quantity of matter contained in a body. It is a measure of inertia. It is a constant quantity. ये हमें inertia के regarding बताता है. It's also a constant quantity. It doesn't vary with the change of gravity of the planet. For example, if a mass of a body on Earth is 20 kg, it will remain constant if we take it to Moon or Mars. अगर किसी चीज़ का weight 20 kg है, फॉर एग्जाम्पल हमने किसी बॉडी को कंसीडर किया, उसका मास अर्थ पे 20 kg है, उसका जो मास है वो 20 kg ही रहेगा, चाहे हम उसे मून पे लेके जाएं चाहे उसे मार्स पे लेके जाएं। सो नेक्स्ट, व्हाट अबाउट द वेट? वेट इज द फोर्स विद विच द अर्थ पुल्स अ बॉडी टुवर्ड्स इट्स सेंटर. It is found that weight of a body is more at poles than at equator. It is because the gravity is maximum at the poles and minimum at the equator. जो weight है वो एक force है जो अर्थ हर बॉडी पे लगा रही है to pull the body towards its center, अपनी सेंटर की तरफ अट्रैक्ट कर रही है। हम ये क्या देखते हैं कि वेट ऑफ अ बॉडी इज़ मोर एट द पोल्स, कि जब हम पोल्स पे कोई बॉडी होती है तो उसका जो वेट है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू द इक्वेटर पार्ट। वाई? क्योंकि जो ग्रेविटी पुल है वो पोल पे मैक्सिमम होता है एज़ कम्पेयर टू द इक्वेटर्स। सो द वेट ऑफ बॉडी डिक्रीजेज when it is taken in an aircraft. The astronauts who went to the moon found themselves much lighter as compared to weight on the earth. वेट है जो बॉडी का डिक्रीज करता है जब हम स्पेस में मूव करें, जस्ट लाइक एन एस्ट्रोनॉमर है जो मून पे जाता है वो अपने आप को लाइटर फील करता है। क्यों? क्योंकि उस पर जो
वेट ऑफ अर्थ है, मीन्स द ग्रेविटेशनल पुल है अर्थ का, वो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, उस पर ग्रेविटी पुल नहीं लगता, तो उसका वेट क्या होगा, लाइटर होगा. सो दिस इज ऑल अबाउट दी वेट. नेक्स्ट यूनिट ऑफ मास एंड वेट. SI unit of mass is kg, kilogram, and CGS unit is gram. For weight, its SI unit is Newton, that is denoted by N, or kg weight, or in CGS the unit of weight is dyne. 1 Newton equals to 10 raised to power 5 dyne. This is relation between the SI and CGS unit of weight. So the weight of body of mass 1 kg is equal to 1 kgf, and the weight of the body of mass 1 gram is equal to 1 gf. So this can be written as 1 kgf equals to 9.8 Newton and 1 gf equals to 980 dyne. So this is all about the mass and weight. Now we discuss about the measurement of mass. For measuring the mass of a body, we use beam balance. The commonly used beam balance as shown in figure. Actually the ancient Egyptians developed the balance to weight grains. इजिप्टियंस ने इसे यूज़ किया था ग्रेन्स के वेट को मेज़र करने के लिए. अ बीम बैलेंस कंसिस्ट ऑफ टू हॉरिजॉन्टल बीम सपोर्टेड एट सेंटर विद 2 सिमिलर पैन्स. हॉरिजॉन्टल बीम के साथ 2 पैन्स को हमने अटैच किया एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर. जो इनका सेंटर से डिस्टेंस है वो भी क्या होगा, इक्वल होगा. द ऑब्जेक्ट टू बी वेट इज़ प्लेस्ड ऑन वन ऑफ द पैन. जिसका भी हमें वेट करना है उसके हम एक पैन में रखेंगे. द स्टैंडर्ड वेट आर प्लेस्ड ऑन द अदर पैन. यहाँ पे हमने जिस ऑब्जेक्ट का वेट करना है उसको रखेंगे, ऑन द अदर साइड हम स्टैंडर्ड वेट को रखेंगे, जस्ट लाइक 1 kg 2 kg. व्हेन दीज आर ऑन द हॉरिजॉन्टल अगेन, देन वी tell about the mass of that object. The mass of object being weighted is equal to the sum of standard weight used. जितना वेट हम यहाँ पे प्लेस करेंगे और ऑब्जेक्ट दोनों एक सेम लेवल पे आ जाएं तब तक हमें यहाँ पे वेट पुट करेंगे. वेट मास के हम अनदर जो वेइंग है, ठीक है, उनको रखेंगे जब तक ये दोनों बैलेंस होंगे, ठीक है, वो इसका एक्चुअल में मास होगा. Principle of a beam balance. The beam balance is based on the principle that two bodies of equal or same mass will secure a balance on the beam balance having arms of equal length and pans of the equal mass. ये कौन से प्रिंसिपल पे बेस्ड है? अगर दो बॉडीज़ है इक्वल मासेस की हैं तो वो बीम बैलेंस के 2 आर्म्स हैं उनमें बैलेंस होगा. कब होगा? जब उनकी जो आर्म्स है वो इक्वल लेंथ की होंगी, पैन्स है वो भी इक्वल मासेस के होंगे. तो इसके करैक्टरिस्टिक क्या है ऑफ एन एक्यूरेट बीम बैलेंस? बोथ दी पैन्स मस्ट बी ऑफ इक्वल मास. जो पैन्स हैं दोनों इक्वल मास के होने चाहिए, आर्म्स हैं वो भी क्या होनी चाहिए, इक्वल लेंथ की होनी चाहिए. बोथ दी पैन मस्ट बी सस्पेंडेड विद द स्ट्रिंग ऑफ इक्वल लेंथ एंड मास. जो इनकी जो स्ट्रिंग है जो सस्पेंडेड कर रही है वो भी इक्वल लेंथ और मास की होनी चाहिए. और लिफ्टिंग द बीम बैलेंस, द बीम शुड बी हॉरिजॉन्टल एंड द पॉइंटर वर्टिकल. जब हम उसमें बीम बैलेंस को लिफ्ट करेंगे तो उसका जो बीम है वो हॉरिजॉन्टल होना चाहिए और जो पॉइंटर है वो वर्टिकल होना चाहिए. व्हेन नथिंग इज प्लेस्ड ऑन आइदर पैन, जब दोनों पैन्स पे कुछ भी नहीं हमने रखा. वर्किंग ऑफ अ बीम बैलेंस क्या है? पहले हम क्या देखेंगे, बीम बैलेंस के आप एग्जांपल देख सकते हो. विच यूज़ ग्रोसर फॉर वेइंग आर्टिकल्स लाइक शुगर, पल्स, राइस, वेजिटेबल्स एक्सेट्रा. इस पर आप क्या देखेंगे, पहले जब हम इस पर कुछ भी नहीं रखा तो ईदर पैन द रॉड शुड बी हॉरिजॉन्टल. जो ये रॉड है या वो दोनों बैलेंस होने चाहिए. जो ये पैन्स हैं वो भी सेम लेवल पे होनी चाहिए. द मास टू बी मेजर इज प्लेस्ड ऑन वन ऑफ द पैन. जिसका भी हमें मास करना है उसे वन ऑफ द पैन में रखेंगे. स्टैंडर्ड वेट्स आर प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट पैन, और लेफ्ट पैन पे हम स्टैंडर्ड वेट रखेंगे 1 kg 2 kg समथिंग. यहाँ पे हम जो जिस चीज़ का भी हमें मास मेजर करना है उसको रखेंगे. नाउ द वेट्स ऑन द लेफ्ट पैन आर एडजस्टेड इन सच अ वे दैट बीम अगेन हॉरिजॉन्टल पोजीशन ऑन होल्डिंग अप द बैलेंस. कब तक उसमें यहाँ पे मास रखेंगे? जब तक दोनों का जो वेट है वो बैलेंस नहीं होता. तो दिस इज़ ऑल अबाउट द वर्किंग ऑफ अ बीम बैलेंस. नाउ वी टॉक अबाउट द
measuring of weight, that is spring balance. It is device used for measuring the weight of a body. You can see here a spring balance. ये क्या है? स्प्रिंग इज एनक्लोज्ड इन अ मेटालिक केस, एक मेटालिक केस में रखा है, सो दैट पॉइंटर मूव्स ओवर अ स्केल फिक्स टू इट. यहाँ पे पॉइंटर मूव करता है. यू कैन सी हियर देयर इज अ मेटालिक रिंग ऑन द केस. ठीक है, यहाँ पे क्या है? रिंग्स लगी हुई हैं. दिस इज फॉर होल्डिंग एंड दिस इज फॉर होल्डिंग द मास और द मटेरियल विच वी वेटेड. The scale marking show 1 kg, 2 kg, 3 kg up to so on. The distance between two large marking scale is into 10 part. जो distance है between two large marking है उसको हम डिवाइड करते हैं 10 equal parts में. Each small marking shows 100 ग्राम weight. जो small marking है वो 100 ग्राम weight show करती है. A spring balance measures the weight of a body by opposing the force of gravity with the force of an extended spring. So next about the principle of a spring balance. Spring balance का principle क्या है? A spring balance works on the principle that when a body hung on a spring, the spring extension is proportional to the weight. कौन से principle पे वर्क करता है? जब हम बॉडी को और लोड को एक स्प्रिंग में हंग करते हैं, ठीक है, सस्पेंड करते हैं, तो वो स्प्रिंग की एक्सटेंशन होती है. जो एक्सटेंशन होती है स्प्रिंग की वो किस पे डिपेंड करती हैं? प्रोपोर्शनल टू दी वेट. जितना उसका वेट होगा उतनी ज़्यादा है जो एक्सटेंशन है वो स्प्रिंग की होगी. अगर जो स्प्रिंग है वो ट्वाइस स्ट्रेच हो रहा है, डबल टाइम स्ट्रेच हो रहा है, तो उसका जो वेट है वो भी डबल टाइम होगा. अगर उसका जो स्प्रिंग है थ्राइस स्ट्रेच हो रहा है तो उसका वेट भी थ्राइस होगा ना. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस. सो बाय समरिंग दिस इफेक्ट द ब्रिटिश साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक एंड इज नोन एज एंड दिस लॉ इज नोन एज हुक्स लॉ. ये जो इफेक्ट है उसको किसने सम अप किया था? बाय ब्रिटिश साइंटिस्ट दैट इज रॉबर्ट हुक, एंड दिस इज नोन एज द हुक्स लॉ. जो ये लॉ है जिसके अकॉर्डिंग हम इसे अप्लाई करते हैं दैट इज कॉल्ड हुक्स लॉ. हुक्स लॉ स्टेट्स दैट द अमाउंट ऑफ इलास्टिक बॉडी स्ट्रेच आउट ऑफ शेप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एक्टिंग ऑन देम. ये जो जितनी जो इलास्टिक है या स्प्रिंग है कितना स्ट्रेच होगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दी फोर्स एक्टिंग ऑन दैम. जितनी फोर्स उस पर एक्ट करेगी उतनी उसकी ज़्यादा एक्सटेंशन होगी. सो दिस इज ऑल अबाउट दी प्रिंसिपल ऑफ अ स्प्रिंग बैलेंस. नाउ अबाउट दी वर्किंग ऑफ अ स्प्रिंग बैलेंस. हैंग द स्प्रिंग बैलेंस फ्रॉम अ रिजिड सपोर्ट. एक रिजिड सपोर्ट पे यहाँ से इसे हम क्या करेंगे? यहाँ से क्या करेंगे? हैंग करेंगे. नाउ ये हमें मेक श्योर दैट पॉइंटर ऑफ अ स्प्रिंग बैलेंस रीड्स 0 व्हेन नो वेट इज सस्पेंडेड फ्रॉम दी हुक. पहले हमें क्या ऑब्जर्व करना है कि वहाँ पे जब हम इसे हंग करेंगे तो इसकी जो रीडिंग है वो 0 होनी चाहिए जब तक यहाँ पे हमने कोई बॉडी अटैच नहीं की. सो नाउ आफ्टर सस्पेंडिंग द बॉडी हेयर, यहाँ जब हम इसको सस्पेंड करेंगे यहाँ से, इसके जो नीचे वाला पोर्शन है उसमें जब कोई ना कोई हम ऑब्जेक्ट रखेंगे. Now read the position of pointer through the calibrated scale. This reading gives the weight of the object. यहाँ पे रीडिंग शो होगी कि उसका वेट कितना होगा. This is all about the working of a spring balance. Now about the relation between mass and weight. According to Newton's law of motion, weight equals to mass into acceleration due to gravity. Weight क्या होता है? Mass into acceleration of due to gravity. Weight is denoted by W, mass is denoted by small m, and acceleration due to gravity denoted by small g. So with the help of this formula we can explain why the beta body is space in zero. इस फॉर्मूला को यूज़ करके हम बोल सकते हैं कि जो स्पेस है उसमें बॉडी का जो वेट है वो ज़ीरो क्यों होता है. ऑन दी इन दिस स्पेस में क्या होगा? जो ग्रेविटी पुल है वो कितना होगा? स्मॉल जी इक्वल टू 0. ग्रेविटी पुल तो होगा नहीं क्योंकि वो जो ग्रेविटी है वो एक सर्टन लिमिट तक अपना इफेक्ट शो करती है. सो इन दिस स्पेस स्मॉल जी इक्वल टू 0. सो वी पुट हियर 0. समथिंग मल्टीप्लाई बाय 0 दैट इज 0. सो द वेट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट इन स्पेस ऑल्सो बिकम 0. जब उसका जो ग्रेविटी पुल है वो 0 होगा तो ऑब्वियस है जो उसका वेट है वो भी कितना होगा? 0. दिस इज ऑल अबाउट द रिलेशन बिटवीन मास एंड वेट. नाउ डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट. मास इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन इन अ बॉडी इज कॉल्ड मास.
the weight of our body is gravitational pull acting on it. This is all about the topic that we already learned. Mass is a scalar quantity, weight is a vector quantity. Mass remain constant everywhere. Weight varies from place to place. Measurement mass can be measured with the help of a beam balance or a physical balance. Weight can be measured by using a spring balance. Mass measured in gram and kilograms, weight measured in Newton and kilogram weight. So this is all about the mass and weight and the volume of the solids, liquid and all these things. This is the checkpoints. You do this by yourself. If you have any problem, then we also provide you the written assignment for this topic. We will discuss about these points if you have any doubts in our online classes also. So thanks students, have a nice day.